میں چلے گا نہیں میں میڈیا کے ساتھ ہمارا ایک انٹریکشن تھا. تو السلام علیکم سب کو سلام. اور نیا سال شروع ہوا ہے تو سب کو اس نئے سال میں مبارکباد بھی دیتے اور امید کرتے ہیں کہ اس نئے سال میں کوئی اچھی خبریں ملیں گی. وہ کہ پچھلے 3.5 برسوں سے ہمیں صرف بری خبریں موصول ہو رہی ہیں اور ملک کے حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. عوام کے حالات, غریب کے حالات, مزدور کے حالات, کسان کے حالات جو ہے وہ اس وقت بہت برے. اور انہی حالات کے اوپر ہم نے پچھلے 3.5 برسوں میں اس نااہل حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور ہم نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا ہے, تبدیلی نہیں تباہی, جو تبدیلی کا نعرہ لگا کر عمران خان لوگوں کو جھوٹ بول کر اور دھاندلی سے الیکشن جیت کر آیا تھا, آج وہی تبدیلی تباہی میں تبدیل ہو گئی. اور اس تباہی کو ہم نے اس کتاب میں کوشش کی ہے کہ آپ کو ہم بتائیں. کوئی چیز جو ہے وہ شادیہ مری نے بنائی نہیں, فیصل کنڈی نے بنائی نہیں, صاحب نے بنائی نہیں. وہ تمام انٹرنیشنل جو ریسرچ ہے, اسٹڈی ہے, جریدے ہیں, عمران خان کی اپنی اسٹیٹمنٹس ہے, اس کے اپنی بیانات ہیں, وہ اس میں درج ہے. وہ کیا کہتے تھے, کیا کیا اور اب کیا ہو رہا ہے, وہ سب اس کے اندر بیان کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اگست کے اندر نالائکوں نے لیکن ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. تقریباً 250 پیجز کا ڈاکیومنٹ تھا جو کہ اکنامک سروے کے جیسا تھا. اکنامک سروے آتا ہے بجٹ کے ساتھ, وہ اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے, بہت ہی موٹی کتاب. انہوں نے دوبارہ چھاپی, تو کسی کو ٹیکا دیا ہوگا, کسی کے پیسے بنتے ہوں گے اس میں, کیونکہ یہ پرنٹنگ کا بڑا کھانچا ہوتا ہے. میرے اب مجھے بتاؤ نا, میں نے تو آڈیو چیک کروائی تھی. یہ جب سے آئے یہ کمال میں نے تو آڈیو چیک کروائی, پریس کانفرنس سٹارٹ ہو گئی. بتاؤ میں موبائل کیمرہ ہوتا تو چلو بندہ موبائل ہے, مجھے کیا پتا کیا. پیسے بھی کھا گئے. آج بھی 40 ارب کا انہوں نے حساب دینا ہے جو انہوں نے نہیں میں نے 2 دفعہ تو اتار ان دیا. نالائکوں کی جو نالائکیاں ہیں یہ وہ اتار ہم نے دیا. رپورٹ میں درج کی ہیں. یہ آپ وائٹ پیپر کہہ لیں, ان کے حکومت کا جائزہ ہاں یہ کہہ لیں, جنرل ہو آپ گیا یہ نا, ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. آج یہ کی جو خبر میں نے ہے وہ پن لگا یہی دیا ہے کہ دوبارہ. فارن فنڈنگ کے حوالے سے ان لوگوں نے ہاں جی, اب 77 پن لگی اکاؤنٹس ہوئی میں ہے سے صرف اور 12 آڈیو اکاؤنٹس کی بھی تفصیلات فل دی. ہے. میں نے اپنی پچھلی جو پریس کانفرنس تھی اس میں نے ان کی فارن فنڈنگ کو تھوڑا سا اس پر ذکر کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے مانگتے ہیں ہاسپٹل کے لیے, چیک لکھواتے ہیں پی ٹی آئی کے. یہ وہ چور ہے, یہ وہ ٹھگ. مطلب دینے والا تو دیتا ہے ایک اچھے کاز کے, لیکن جو لینے والا ٹھگ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پارٹی کے نام پہ چیک دے, اور یہ پارٹی کے نام پہ چیک جو ہے وہ لیا جاتا ہے ہاسپٹل کا نام لکھا کر. تو یہ اس طرح کے چور, اس طرح کے ندیدے بھوکے لوگ. مطلب یہ کہ کار خیر میں اگر آپ ایمانداری نہیں دکھا سکتے تو آپ کس چیز میں ایمانداری دکھائیں گے. تو چونکہ ان کی فارن فنڈنگ کے اندر آپ چیک کریں. ایسے لوگوں کے پیسے ہیں جن کے حوالے سے یہ خود بہت گندی سیاست کرتے رہے ہیں, لہٰذا یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ کن کی کون سے اکاؤنٹس ہیں, وہ کون سے چیکس ہیں, یہ بتا ہی نہیں سکتے. کیونکہ انہوں نے جو ایک جھوٹا اپنا ایک پورا نیریٹو کھڑا کیا ہے کہ جی ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, ہم کوئی بہت بڑے یہاں پر سچے اور ایماندار اور کرپشن فری قسم کے لوگ ہیں. یہ جو انہوں نے ایک جھوٹا برانڈ بیچا ہے, وہ برانڈ ان کا جو ہے وہ مسک ہو جائے گی اس کی شکل. اگر پتہ چل گیا کہ وہ دیگر اکاؤنٹس یہ چھپا رہے ہیں اس میں کیا تفصیلات ہیں. یہی وجہ ہے کہ بار بار یہ فارن فنڈنگ کیس میں ایڈجرنمنٹ مانگتے ہیں. 7-8 مرتبہ کی ایڈجرنمنٹ تو ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے کون کون سی تاریخوں پہ مانگی ہے. تو ہر بار یہ ایڈجرنمنٹ مانگتے ہیں. کیوں ایڈجرنمنٹ مانگتے ہیں؟ اور پھر وہ جیسے بچے آپس میں لڑتے ہیں نا کہ جی اگر تمہارا سارا قصہ کھلنے والا ہے تو تم کہہ دو کہ پیپلز پارٹی اور تم کہہ دو نون لیگ. ارے بھائی پیپلز پارٹی اپنا حساب دے گی, ای سی پی کو دے گی. آپ ای سی پی کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتے. وہ ای سی پی کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی کا ایک جو پیپر ورک ہے وہ چل رہا ہے, اور پیپلز پارٹی نے اپنا پورا ریکارڈ, پوری تفصیلات اکاؤنٹس کی جمع کرائی ہوئی ہے. تو ناراض بچوں کی طرح اگر روز آ کر آپ
आपसे सिलाई मशीनों का पूछते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं, आपसे आपकी औलादों का पूछते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। आप यहाँ के बच्चों को, उनके माँ बाप को, उनकी माँ को रुला रहे खून के आंसू, उस पर आपसे कोई सवाल करें तो आप जो है सुबह से लेकर शाम तक हमें गालियाँ देते हैं। आप हमें क्यों गालियाँ देते हैं? आप क्यों नहीं बताते कि यहाँ 40 महीने की हुकूमत में आपने क्या किया है पाकिस्तानी अवाम के लिए? आज पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क है। आज पूरे इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई है। आज जो ये हिंदुस्तान की मिसालें देते थकते नहीं है, ये जो हिंदुस्तान के बारे में बार बार ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान में कोविड में इतना बुरा हाल हो गया, सबसे बुरा हाल कोविड में पाकिस्तान का हुआ है। आज आपकी महंगाई 11.75 है, 11.75 बढ़ गई है, 11.5 से भी ऊपर चली गई है। आज आटे, दाल, रोटी, चीनी, इन सब की कीमत जो है बहुत आसमान को छू रही है। आज गरीब आदमी, मिडिल क्लास रहने जैसा नहीं रहा है, इस मुल्क के अंदर सांस लेने जैसा नहीं रहा है। आपसे कोई सवाल करे तो आप गालियां देते। और आज इमरान खान ने ये बयान दिया है कि आप जाके लोगों को समझाएं कि महंगाई नहीं है। तुमने क्या लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है? क्या पागल समझा हुआ है? वो पागल है जो खुदकुशियां कर रहे हैं भूख के मारे, बेरोजगारी के मारे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बता दिया है कि तुम करप्ट ज्यादा हो गए हो। आपको इकोनॉमिक सर्वेस बता रहे हैं कि तुम महंगे ज्यादा हो गए हो। डॉलर की कीमत कहाँ चली गई है? पेट्रोल की कीमत आए दिन बढ़ती है, बिजली की कीमतों में आए दिन इजाफा होता है। 57% बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है जब से इमरान खान आए। 600% गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है जब से इमरान खान। तो इमरान खान तब्दीली नहीं, तबाही लाए। इन अ नटशेल इमरान खान तबाही लाए हैं पाकिस्तान। और ये वक्त आ चुका है कि इमरान खान माफी मांगे, कौम से हाथ जोड़े और कहे कि ना मैंने 19 दिन में करप्शन दूर की, ना मैंने 90 दिन में करप्शन दूर की, ना मैंने टेररिज्म दूर किया, ना मैंने महंगाई दूर की। IMF के सामने मैं भीख मांग रहा हूँ और बहुत बड़े बड़े कशकोल लेकर वहाँ भीख मांग रहा हूँ। आज मैंने पाकिस्तान को तारीखी कर्जे में डुबो दिया है। आज तकरीबन 2 लाख रुपया हर पाकिस्तानी पे कर्जा है। इमरान खान माफी मांगे पाकिस्तानियों से, वक्त आ गया है। वो खुद माफी मांग ले इससे पहले कि पाकिस्तानी उसके गिरबान पे हाथ डाले, और फिर वो ना कहे कि जो है वो कौम ऑपोजिशन भड़का रही है। ऑपोजिशन नहीं भड़का रही, इन भूखे बेरोजगारों को इमरान खान इनको दीवार से लगा रहा है। वो इस नहज पे ले आया है पाकिस्तानियों को कि आज वो केपी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। वहां पर हाथ जोड़ के कहते हैं कि PTI की टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ो, कोई और तरीका ले लो। ये तो आपको बताएंगे फैसल कुंडी साहब केपी का हाल वहाँ पे क्या है। हर बाई इलेक्शन ये हारे, कैंटोनमेंट ये हारे हैं, लोकल बॉडीज में इन्होंने मुंह की खाई है पहले फेज में केपी में। ये लुबाब तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि महंगाई बहुत है और महंगाई से छुटकारा जो है वो इमरान खान के छुटकारे से मिल सकेगा। और फैसल साहब इसमें मजीद रोशनी डालेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ यही है कि गो इमरान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज हम एक तारीखी दिन पे लाहौर में जमा हो रहे हैं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास लाहौर के तारीखी शहर में करने जा रही है। कल शहीद भुट्टो की सालगिरह के मौके पर चेयरमैन बिलावल साहब ने यहाँ पर जो है एक CC की मीटिंग कॉल की है, फेडरल काउंसिल की मीटिंग कॉल की है, सुबह एग्जीक्यूटिव की मीटिंग कॉल की और एक इलेक्टिव मीटिंग होगी जिसमें उसका जो है इंफॉर्मेशन आपके साथ है वगैरह शादिया मरी साहबा हमारे पंजाबी कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी साहब और हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि आज हम आए हैं नए साल की शुरुआत में और आप देखें कि 3.5 साल दौर है। आपके पास 3.5 साल दौर है जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है। हमने 8.5 साल इस तबाही हुकूमत को बर्दाश्त किया और हमेशा आप लोग कहते थे कि हमेशा रमज़ान का चाँद और ईद का चाँद की दुनिया पैदा हुआ, तो हमें तब्दीली का चाँद नज़र आ चुका है। बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरीके से महंगे पाकिस्तान को, नए पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने रिजेक्ट किया है पहले फेज में। इस वक्त इनकी सूबाई हुकूमत के होते हुए, इनकी वफाकी हुकूमत के होते हुए, इनके अपने बेटे, भतीजे, मामे, चाचे सारे आते थे। इमरान खान साहब कहते थे कि इनकी गलत तकसीम होगी। आप खुद आए, आपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की पेशावर में
तमाम आप कैंडिडेट से मिले और आपको पता था कौन किसका मामा है, कौन किसका चाचा है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है, और आपने उसको जो है सबको एकजुट करके उसको लड़ाया। अब आप कहते हैं कि हमने टिकट अलग कर दिया। आपके अपने एमएलए, आपके अपने वज़रा, आपके अपने एमपीएस कह रहे हैं कि हमें जो है हम लोगों में नहीं जा सकते, महंगाई हो चुकी है, लोग हमारी टिकट लेने को कबूल नहीं कर रहे, हम लेना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि आप इमरान का ब्रांड जो है सेल करें। कल अपने वज़रा से कह रहे हैं कि आप जाके मेरा ब्रांड सेल करें। क्या ब्रांड सेल करें? एक झूठे शख्स का, एक मकार शख्स का। आज जैसे शाज़िया बरी साहबा ने कहा है कि इन्होंने जिस तरीके से 53 या 54 अकाउंट छुपाए, अब तो खान साहब आपकी तलाशी का टाइम है। अब आपने तलाशी देनी है, वरना तलाशी ज़बरदस्ती होगी। आप कह रहे हैं कि फिर ये कहते हैं इनके नुमाइंदे कि ये जो फॉरेन फंडिंग है इसको आप ओपन ना करें। अगर ओपन करें तो इज्तिमाई तौर पे करें। इज्तिमाई शादियों का तो सुना था, इज्तिमाई अकाउंट्स और अपने फैसलों का नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट इज्तिमाई या इलेक्शन कमीशन इज्तिमाई फैसले सुना है। आपके तलाशी का वक्त आ चुका है, आपके दिन गिने जा चुके हैं। सबसे बड़ी कामयाबी हमें ये हुई है कि वो लोग जो हमारे साथ माजी में अपोजिशन करते थे, PDM की जमात है, जिनको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से कह रहे थे कि जमहूरी तरीके से इन हाउस से जाना चाहिए, इस्तीफे हल नहीं इस चीज़ का। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि इस्तीफे जो है वो हल नहीं है, इन हाउस का हल है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है अपोजिशन जमातें अगर इकट्ठी होती हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आवाज़ पे, अगर हम अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं, हम गारंटी करते हैं इंशाल्लाह अपोजिशन जमातें सारी इकट्ठी हों, अदम एतमाद कामयाबी है और पाकिस्तान को टारगेट दें, इंशाल्लाह उसको जो है वो कामयाब होंगे। आज अगर आप देखें इस तरीके से तबाही हो रही है इस मुल्क में। आज अगर आप देखें सिंध और खैबर पख्तूनख्वा एक वो सूबा है जो सरप्लस गैस पैदा कर रहा है। आज सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग गैस की खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में। बिजली की लोड शेडिंग हमारे सूबों में 16 और 18 घंटे लोड शेडिंग। ये इस हुकूमत का हाल है जो इन्होंने तबाही कर दी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तबाही का चली गई। पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साउथ वजिस्तान के जनरल सेक्रेटरी थे और हमारे PUP के 113 कैंडिडेट थे नजीबुल्लाह मसूद, उनको टारगेट गिरी में कत्ल किया। डी खान में ANP के कैंडिडेट थे, मेरे कैंडिडेट थे, उनको शहीद किया गया। इस तरह बाकी, लेकिन हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती कि सिंध का में अगर कोई वाक़या होता है तो वफाकी हुकूमत कहती है इसके लिए JT बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जब शहीद किया जाता है उसके लिए JT नहीं है। आज हम मुतालबा करते हैं कि जितने भी शोहदा हैं, सियासी शोहदा हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं, हम हाई कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जितने भी सियासी शोहदा हैं और ख़ासकर इन दिनों में जो नजीबुल्लाह मसूद शहीद हुए हैं, जो पीपल्स पार्टी के जो ANP के कैंडिडेट शहीद हुए हैं, डी खान में मेरे कैंडिडेट थे, उमर खिताब शिरानी, वो शहीद हुए, उनके लिए JT बनाई जाए। और अब क्या बोलें उनके लिए, इनके अपने एक सूबाई वजीर लॉ एंड जस्टिस के इसरार गंड अबू शहीद हुए थे, उनके लिए JT बना के बाद में तोड़ दी गई, उनके भाई ने उसमें एतमाद किया। उनका दावा है, उनकी FIR है, उसके बेटे की FIR 164 का बयान है वफाकी वजीर कश्मीर अबू अलीमी के नबूर के ऊपर, और आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा का है, वो इमरान खान का लाडला है। अगर वो सिंध का डोमिसाइल होता तो आज JT भी होती, आज वो गिरफ्तारी भी होती। लिहाजा हमारे सूबे में इस वक्त हमारी हुकूमत दहशत गर्दों को, कातलों को सिक्योरिटी दे रही है और सियासी जमातें के कैदीन को जो है उनसे सिक्योरिटी छीन रही है। हम मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि इनके ऊपर JT बनाई जाए और हमें बताया जाए कि हमारे शोहदा के कातिल कौन। शादिया मरी साहबा, एक चीज आज 4 जनवरी है, शहीद सलमान तासीर साहब, आज वो काला दिन है जब वो शहीद थे। आज हम उनको, उनकी खिदमत को, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। आपके तबस्सुम से हम चाहेंगे कि उनको करने के साथ साथ ये भी याद रखें कि वो एक ऐसा बहादुर शख्स था जिसने उस वक्त भी बहादुरी दिखाई जब वो जानता था कि उसकी जान को खतरा है। तो हम सलमान तासीर साहब को आज रहे दिल से। अच्छा शादिया मरी साहबा, फारिंग फंडिंग केस, फारिंग आप ये फरमाइएगा कि आपने फारिंग फंडिंग को इतना बड़ा तूफान तो उठा दिया। अभी जो FBR ने कल 2019 में जो रिपोर्ट उसके मुताबिक बिलावल साहब ने 5 लाख रुपये, इसी तरह 22 लाख रुपया जरदारी साहब ने जमा कराया। अगर उन्हें बिलावल साहब ने एक कोशिश की आज एक प्रेस रिलीज जारी करके कि उनका
फेरी टैक्स उसमें शामिल नहीं, हालांकि वो सूबों का काम है। अच्छा, इसी तरह ये यूसुफ रज़ा गिलानी को भी तो टैक्स नहीं जमा करा। इसके मुकाबले में अगर इमरान खान वज़ीर आज़म जो है वो इनसे बहुत कम ज़मीन आसमान का उन्होंने 98 लाख रुपये जमा किया। ये फर्क इतना, क्या आप समझिए, ईमानदारी से बता सकती हैं आप कि इतना फर्क क्या इन्होंने वाकई ये जो कलेक्शन हुई है इनके हाथों से वो ठीक हुई? और इनका ये भी साथ बता दिए इनका ज़राअत के अलावा क्या इनकम है कि सरकारी फर्ज ये पता आपको ज़्यादा पता होगा। देखिए आप कहेंगे इस जवाब देंगे। ये आपका नाता है। एक तो मैं नहीं जानती कि इमरान खान के कौन से बिजनेसेस हैं जो इतने टैक्सेस उनका हैं, छोड़ा, आप वो अपना ठीक है, बताएं। ठीक है ना। और जहाँ तक दूसरी बात है, क्योंकि मैंने अभी वो एफबीआई की रिपोर्ट नहीं देखी है, कल लेकिन ये की बात बात है दुरुस्त है, भाई। मेरी बात सुनिए, मेरी बात मुकम्मल हो जा रही है कि ज़राई टैक्स में नहीं लगा है, क्योंकि काम ही नहीं उसका। नहीं वो नहीं लगा है, वो आपकी ये मालूमात यहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन उसमें और कौन सी तफसीलात हैं या मुकम्मल है या नहीं है, वो मालूमात वो ज़रूर देंगे। क्योंकि देखिए, इदारों के साथ ताल्लुक, वो लोग नहीं है जो इदारों को जलाने की बात करते हैं या इदारों पे हमले की बात करते हैं। अगर इदारा कोई भी तफसील मांगेगा तो बिल्कुल उनके ऑफिस की तरफ से वो तफसील जरूर जाएगी। बिजनेस साहब के इन्वेस्टमेंट्स है, जरदारी साहब का तो आज तो नहीं है बिजनेस, जरदारी साहब तो नई बिजनेस के बैकग्राउंड से आप ये ताल्लुक मानती हैं इमरान खान से ज़्यादा रखते मिले? हैं। मैं ये जानती हूँ कि इमरान खान साहब की एक घड़ी हालिया दिनों में दुबई में कहीं बिकी है, जो कि उन्हें तोहफे में मिली, तो वो यहाँ जमा नहीं हुई, जिसका यहाँ जो बड़े बड़े बात करते हैं उसूलों की, वो यहाँ जमा नहीं हुई और तोशाखाना में जमा नहीं हुई, और वो जहाँ बिक रही थी तो उन्हें देने वाले ने कहा कि यहाँ बेचे नहीं, हमें वापस कर दो। तो देखिए, हमें सारे पता है घड़ी के क्या है, उनका किचन कौन चलाते हैं, उनका खाना कौन उनको खिलाते हैं, उनके अखराजात कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम अपनी तफसीलात जरूर देंगे, लेकिन ये भी बताया जाए कि तोशाखाना में वो चीज़ें जमा करने से इनकारी क्यों थी। आप अपना अभी ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि आज पीडीएम जमातें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तस्लीम कर रही हैं कि हमें इस्तीफों की तरफ नहीं जाना चाहिए, अदम एतमाद लाना चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी आपने कहा कि अगर अदम एतमाद की तरफ आते पीपल्स पार्टी पर वर्क करेगी, जबकि पीडीएम लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है, उन्होंने डेट दे दी है, तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। आप ये सिर्फ अब पीडीएम में वापसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें पीडीएम में दोबारा शामिल कर दिया जाए, या आप लोगों के नून लीग और मौलाना साहब राब्ते शुरू हो चुके हैं अदम एतमाद? देखिए, पहली बात तो ये कि लीडरों के शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन जमातों का उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, हमारी के अंदर एक पेज हमने कोई रास्ते की कोशिश नहीं की, ना हम कोशिश कर रहे हैं, ना हमारी। हमने ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पहले दिन से जो मौक़िफ़ था, हमने कहा था हम जाते हैं बाई इलेक्शन में, हम गए, हमने कामयाब हो सकते, और सेंट के इलेक्शन में हमने कहा हम चलो जाते हैं, हमने कामयाब हो सकते। हमने जो हमने कहा था कि इस्तीफे आखिरी हर में, और इन्होंने हमें कहा था कि अगर लॉन्ग मार्च में इस्तीफे दिए वो लॉन्ग मार्च बेमानी होगा। तो हम ये सब पूछ रहे हैं कि ये जो है लॉन्ग मार्च जो है, अगर इस्तीफे नहीं होते तो बेमानी होगा, और अगर इस्तीफे होंगे तो पानी तेज होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जमहूरी तरीके से अपोजिशन जमातें अगर अदम एतमाद की तहरीक लाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा ये बताएं एक मिनट भाई, एक मिनट। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब ने जो अकाउंट छुपाए हैं, उससे तो उनकी हैसियत पता लग गई है, साफ चली और शफाफ चली, तहरीक पता लग गई है। क्या इसमें आप समझती हैं कोई राह भी मुलविस है अकाउंट में, और इसराइल भी और इंडिया के खिलाफ भी मुलविस है चंदा देने में, क्या कोई ऐसी है? देखिए, बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम इतना बड़ा नैरेटिव नहीं बनाते कि कौन दुश्मन है और कौन गद्दार है और कौन किसके साथ बात करना गुनाह है। ये सारा नैरेटिव जो है ना, ये इमरान खान साहब बिल्ड कर देते हैं, और इमरान खान साहब के अकाउंट्स में कुछ ऐसे बातें हैं जिनकी खबर मिलते ही उनको तशवीश हो जाती है कि ये अब मामला खुलने वाला है। तो यकीनन आप जो सवाल कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कि इस कदर कोई संगीन किस्म का लिंक हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि उनके अपने जो
नहीं गई थी उनकी फॉरेन फंडिंग को चैलेंज करने, उनका अपना बुनियादी रुकन गया था। अब वो 100 दफा कहते हैं वो हमारा मेंबर नहीं है, लेकिन वो उन बानी कारकुनों में से है जिसने पीटीआई की बुनियाद रखी थी। तो अब वो खुद ये तफसीलात दे रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि देखें जी, जिसकी जो रिकॉर्ड है वो सामने आए। अगर पीटीआई को कोई परेशानी नहीं है तो पीटीआई एडजर्नमेंट क्यों डालती है जब फैसला आने की तारीख होती है? अच्छा, एक मिनट सवाल ले लें, मेहरबानी की, मतलब आपकी नवाजिश नहीं, मेहरबानी आपकी। मेरा सवाल ये है कि बीबी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि बंद कमरों में रात के अंधेरों में ना मिला करें, ठीक है। अब जो है पीपल्स पार्टी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और उधर से लंदन से भी फ्लाइट की आमद का आवाज़ें सुन रहे हैं कि वो भी लैंड कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं, भाई आप कर लें पहले, आगे कौन है आज करो यार। लंदन से फ्लाइट लैंड होने को तैयार है, आवाज़ें आ रही हैं कि मियाँ साहब भी रेडी हैं। क्या आप समझते हैं कि फिर वही होगा जिस तरह इमरान खान को आज पुकारा जाता है कि जो लाए थे वो ले गए, फिर कहीं गलती करने तो नहीं जा रही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज? देखिए, एक तो इसमें कोई, मुझे नहीं पता कि आपको ये तासुर कैसे मिला। कोई बंद कमरों में पीपल्स पार्टी किसी से नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी जो जदोजहद कर रही है इस मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, गैस की बंदिश, बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ, वो आवाम के साथ अब सड़कों पे कर रही है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर आज पाकिस्तान के अंदर इस नालायक हुकूमत की आंख में आंख डालकर कोई लीडर बात कर रहा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। अगर दहशतगर्दी को ललकार रहा है तो बिलावल भुट्टो जरदारी है। अगर इस मुल्क में होने वाली आवाम के साथ नाइंसाफियों पर बात कर रहा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। केपी के अंदर जिस तरीके का जलसा मुनक्कद किया गया, बावजूद वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस के, वहाँ पर ये बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया, बल्कि पुलिस साहब मेरे साथ मौजूद है कि यहाँ पीपल्स पार्टी कोई इवेंट नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ पर भी बहुत वेलकमिंग एक जेस्चर था लोगों का। तो लोग जो है वो देख रहे हैं कि एक रुझान लोगों का जो है, वो एक खौफ जो लोगों के अंदर बिठाया गया था वो भी कम हो रहा है। रुझान बिलावल भुट्टो साहब की सियासत की तरफ, उनकी तर्ज़े हुक्मरानी जो वो बता रहे हैं कि मैं इस तरह की हुकूमत लाऊंगा, ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं लोगों को। इससे हरगिज़ ये नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। और आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इस मुल्क में जद्दोजहद, शहादतें और जेल है। जरदारी साहब खुद 12 बरस की जेल काट चुके हैं। इससे ज़्यादा वो और क्या साबित करेंगे कि उन्होंने कभी किसी से कोई मुआहदा नहीं किया। यहाँ तो लोग मच्छरों से परेशान हो जाते हैं, तो जरदारी साहब तो 12-13 साल जेल में गुजार दिया। जी शाहिद साहब, ये बताइए कि आज असदुल्ला ने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी के भी कई अकाउंट्स सामने नजर आ रहे हैं जो रिपोर्ट आई है। पहली बात ये है कि आपके अकाउंट्स किसके अंडर डिस्कशन है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री एजेंसी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? दूसरा ये कि आपके कितने अकाउंट्स हैं जो अंडर ट्रस्ट है? अब अकाउंट्स की तफसीलात जो है वो हमारी जो भी टीम है फॉरेन फंडिंग को हैंडल करती है वो मुतवातर ECB के सामने जाती है। और मैं आपको सिर्फ कैटेगोरिकली ये बता दूँ कि कोई ऐसा अकाउंट हमारा छुपा हुआ नहीं है। दूसरा, तमाम जो अकाउंट्स है उनकी रेगुलरली तफसीलात हमारी जो डेडिकेटेड टीम ECB के साथ फॉरेन फंडिंग में डील करती है वो दे रही है। ये मुझे पता है कि इसमें कोई आज तक सवालिया निशान नहीं था, लेकिन वो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े आने वाली मिसाल है कि PTI के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो मुख्तलिफ उन्होंने सिर्फ माहौल की खराबी के लिए रखे हुए हैं, वो कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं, वो शोशे ही होते हैं। ये मौसम जिसका आपने नाम दिया, ये वही है जो कहते थे कि कोविड जो कहते थे जब इंपीरियल कॉलेज आई थी कि ये बोरो स्टडीज को नहीं पढ़ोगे, आ जाओ इतना बिलीव नहीं करो। इतना जो स्टेटमेंट मैं उधर आ सर है ना पैर, अगर कोई सबूत है तो ले आए। जिम्मेदारी उसी पर होती है जो ये कहता है, ये इल्जाम लगाता है। इल्जाम लगाने वाला सबूत ले आए। जी मैं साहब, ये तो देखें, हो गया ना, अब PTI की चोरी पकड़ी गई है, उनको हर कोई नजर आ रहा है कि चोर है। कैमरे में देख के बात करें, कैमरे में देख के बात करें।
पार्टी अच्छी बन सकती है आपके वहाँ पे मेरा ख्याल है आप उसी के बाद है मौलाना फजल मान साहब ने 23 मार्च को नवाज शरीफ को दावत दी है पीपल्स पार्टी दावत देती है और शामिल होना चाहते हैं। देखिए मैं बिल्कुल मानता हूँ कि पीपल्स पार्टी बहुत से भी बदलाव के लिए और आप यही समझते हैं मोदी साहब कैमरे में देखिएगा सामने। पीपल्स पार्टी ने पहले से ज़्यादा एग्रेसिव है। सेकंड फेज हमारा जो ये जिसमें पाकिस्तान सेकंड फेज आएंगे, लेकिन एक बात तो बिल्कुल ख्याल हो जाती है, जैसे मैंने पहले कहा है कि तब्दीली का चांद नजर आता है, लोगों ने रिजेक्ट कर दी है। जहाँ तक मार्च की बात आपने की, हमने पहले कहा है कि मौलाना साहब ने हमें कहा था कि इस्तीफे नहीं देंगे तो मार्च जो है ये बेमानी है। अब हम देख रहे हैं कि मार्च मानी तेज है या बेमानी। हमें तो दावत आई है और ना हमारा कोई खिलाफ नहीं कर सकते। दावत आएंगे तो पार्टी की सेक्रेटरी और करेंगे उसके बाद। पार्टी ये बताइए कि पीपल्स पार्टी में इस्तीफे तो नहीं दिए, तो आपने सिस्टम के अंदर रहते हुए अवाम के लिए क्या डिलीवर किया है और क्या इमरान खान की माफी मांगने से मामला छूट जाएगा? वो तो 1.5 साल और निकाल जाएगा। देखिए बात ये है कि इस्तीफे तो हमारा ऑप्शन था नहीं। हमारा ऑप्शन हमेशा तो ये था कि सिस्टम के अंदर रहकर बहैसियत अगर ऑपोजिशन भी हमें एक फोरम मिलता है, स्पेस मिलती है तो उससे बात करें, क्योंकि यकीनन इस मुल्क की अकाउंटेबिलिटी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। आपने देखा है कि पिछले 3.5 वर्षों के अंदर पार्लियामेंट को भी जिस तरीके से उसकी वहाँ पे रिवायात को या उनके कवायद ज़वाबित को जिस तरीके से रोंदा गया है, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती माजी में। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, उस पार्लियामेंट में रह के मुझे फ़ख्र होता कि अगर पार्लियामेंट के रूल्स फॉलो हो रहे होते और अब एक तरीका अगर ऑर्डिनेंसेस का आइन में दिया गया है तो उसके भी कुछ लवाजमात होते हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। ये नहीं है कि 4 माह तक एक ऑर्डिनेंस छुपाया हुआ है, लेकिन जब किसी सहाफ़ी ने बता दिया कि एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ है किसी हिंदुस्तानी जासूस का, तो वो यकायक बाहर निकल आया। तो मतलब ऐसी चीज़ें असेंबली में हुई है जो जिससे कि अकल दंग रह जाती है। लेकिन फिर भी हम इस सिस्टम में रहकर इस सिस्टम के अंदर ही इनका मुकाबला करना चाहते थे, क्योंकि दीगर जमातें में से 1-2 जमातें थी जो बरज़िद थी, लेकिन जो जमातें बरज़िद थी उन्होंने पीपल्स पार्टी के इस्तीफे ना देने के बावजूद अपने इस्तीफे नहीं दिए। तो यानी कि वो भी ये समझते हैं कि सिस्टम में रहकर इन लोगों का मुकाबला करना ज़रूरी है, अपनी स्पेस नहीं छोड़नी। जहाँ तक डिलीवरी है, देखिए एक सिंध में हमारी हुकूमत है, वहाँ पर हमने भी जो पहली तारीख को की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें सीधा बातें बयान की थी। मैंने हेल्थ सेक्टर की बताई थी कि जी पब्लिक हेल्थ सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट किया है सिंध हुकूमत ने, और जो एक सेहत कार्ड के नाम पर एक इन्होंने नया ड्रामा शुरू किया है जिसके अंदर आपके कोई ट्रांसप्लांट्स नहीं हो सकते। अगर आपको खुदा न खास्ता डायबिटीज़ है तो ताउम्र आपको उसकी दवाई नहीं मिल सकती, OPD उसमें कवर नहीं होती। मतलब उस हेल्थ कार्ड की जो पूरी कीमत है उसके अंदर खुदा न खास्ता हमने से किसी को 5 दिन कोविड होके ICU में गुजारने हो तो वो कार्ड वो भी कवर नहीं करता। तो ये एक नया प्रपोजल है। हमें जो ज़रूरी चीज़ है वो है पब्लिक हॉस्पिटल्स को बेहतर करना, जो संगीन इलाज है जिसमें दिल का मर्ज हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो या दीगर जो बड़े ऑपरेशन हो। और सबसे बुनियादी बात मेरे भाई ये है कि इस मुल्क के अंदर दवाएं सस्ती हो। अद्वियात 600-700% उनके कीमतें बढ़ चुकी हैं। जिस वजीर पर ये जिम्मेदारी आई थी उसको सजा ये मिली, उनके कोई सजा नहीं मिली। तो देखिए बात सारी ये है कि जो बुनियादी प्रायोरिटीज है वो एड्रेस नहीं हुई है, लेकिन एक लॉलीपॉप अगर सेहत कार्ड का मिल गया है तो उससे मसला हल नहीं होगा। आज भी हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन मरीज पर 1 रुपया उससे नहीं लिया जाता। सिंध में 200 पेशेंट्स सिर्फ पंजाब से, मैं आपको सिर्फ ये अभी हालिया का तखमीना बता रही हूँ, जिन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट आके सिंध में कराया है। तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान के किसी भी कोने में सहूलत हो, ये अच्छी सहूलत है और इसकी नकल करनी चाहिए। पंजाब को भी करनी चाहिए, यूपी को भी करनी चाहिए। यहाँ पर भी बहुत सारे अमराज हैं जिसका मुफ्त इलाज लोगों को चाहिए।
सीएससी की मीटिंग के हवाले से सीएससी की मीटिंग के हवाले से बता दीजिए। चीमा साहब नाल है भी ले लो खालसा एक मिनट नाल ऐड चीमा साहब मेरा है भी ऐड कर लो है भी ऐड कर लो नाल ही ऐड कर लो ऐड कर लो बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर से 5 जनवरी को तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था और इस हवाले से जो जलसा रखा गया था वो मौसम की खराबी के बाद मुलतवी कर दिया गया है और कल आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है। क्या पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तहरीक का कोई प्रोग्राम देने जा रही है, कुछ जलसों का प्रोग्राम देने जा रही है या कुछ ट्रेन मार्च या लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम? मैं आपका सवाल का जवाब पहले दे दूं, पहले अगर आपकी इजाजत हो। बहुत शुक्रिया। लेकिन जो आपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के हवाले से बात की है, कल उस इजलास की तारीख थी जो मुनक्किद किया जा रहा है और मेरे क्योंकि हम दोनों इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि कोई जलसा था, लेकिन उस मीटिंग के अंदर अलबत्ता लाए अमल जो है वो ज़ेरे गौर आएगा। मुख्तलिफ जो अरकान हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के उनकी आराम को सुना जाएगा, उनकी आराम को सुनने के बाद फैसले लिए जाएंगे। मीटिंग का एक बाकायदा एजेंडा होगा, यकीनन उसमें महंगाई की एजेंडा पर होगा, उसमें गैस की कमीशन होगा, लोगों के मसाइल होगा, लोगों की जरूरियत को जिस तरीके से रोज बरोज नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें एजेंडा का हिस्सा होंगी और फिर उसके बाद जो फैसले होंगे वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। जहाँ तक आपने लोकल कमेटी बहुत ही इस वक्त नया लोकल बॉडीज का एक्ट आया है जो अमेंड होकर आया है, वो एक बहुत ही आवाम दोस्त लॉ है और इस वक्त जो सिंध के अंदर जब जमातें उसकी वो अपोज कर रही है अभी तक ये बता नहीं पाई है कि उसकी बुनियादी मसाइल क्या दरपेश है, क्या नजर आ रही है। अलबत्ता जो गवर्नर साहब सिंध के गवर्नर ने जो उनके ऊपर उन ऑब्जर्वेशन को इंकॉर्पोरेट किया गया है और फिर उस लॉ को दोबारा से उसमें काम किया गया है। तो इस वक्त देखिए बजाय निशान फैलाने की जमात होनी चाहिए वो भी जेन्युइन कंसर्न है। अगर उनका ये मसला है कि वो इलेक्शन जीतेंगे नहीं और वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो ना और वो इतना वो कहते हैं कि वो रंग में भंग डाल दें तो वो मैं नहीं चाहती, लेकिन मेरे नज़दीक अगर कोई इतराज़ गवर्नमेंट इतना दिल भी रखती है और पीपल्स पार्टी इतनी सोच भी रखती है कि वो उनसे बैठ के बात करे। दूसरी बात, जिस सूबे में हम बैठे हैं वहाँ पे ऑर्डिनेंस के जरिए कानून आए, इस्लामाबाद का भी कानून ऑर्डिनेंस के जरिए आया, तो आप लोग अपने तवज्जुह से यहाँ पर मौजूद जो असेंबलियाँ हैं या असेंबली है उस पे बैठे हुए अरकान की जो सोच और सियासी मसलत है उसको ना के इतने बड़े सबसे बड़े आबादी के सबसे बड़े सूबे के अंदर कानून असेंबली के बजाय ऑर्डिनेंस के जरिए अलायंस हो सकता है लाइन्स दाना भी सुन लो ओ भाईजान पीछे आइयो यार, की हो गया है? ला 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 मेरा भी आगे चलो हो गया बराबर। भाईजान तो पीछे आइयो थोड़ा, तो पीछे यार क्या आगे थोड़े से पीछे आयो भाईजान। भैया दाना हो रही ने नारे एडी दिन